الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم میرے دینی بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک ایسی مجلس میں جمع کیا ہے جس کے اندر فرشتوں کی رحمت، فرشتے اپنی رحمت کے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور رحمت میں ڈھانپ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آج جیسا کہ ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں چل رہے ہیں تو مناسب میں سمجھا کہ زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ایک بدعت میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایک گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کی حقیقت ہم پہچانیں تاکہ ہم لوگوں کو بول سکے. اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو الحمدللہ اللہ ہمارے کو بچائے رکھا ہے، اور دوسرے جو بھی ہمارے بھائی لوگ عمل کرتے ہیں ان تک ہم یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. دیکھو ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حال ہی میں، ان کا نام محمد بن صالح العثیمین، ابن عثیمین کے نام سے بہت مشہور بھی جانے جاتے ہیں. تو ان کی کئی کتابیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے، تو انہوں نے کچھ باتیں بیان، چار ایسے مسائل وہ بتائے جس کی بنیاد پر انہوں نے دلیل کے طور پر گواہی بلکہ شہادت ان کی خود دی کہ یہ چار مسائل کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ کیا میلاد صحیح ہے یا نہیں. تو پہلا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جو میلاد مناتے ہیں لوگ 12 ربیع الاول، تو تاریخ کا اعتبار بھی ہم اگر کرتے ہیں تو سائنسدان جو بھی علوم فلکیات عربی میں جسے بولتے، تو جو ستاروں کا جو علم رکھنے والے، ستاروں کا جو نالج جن کو ہے، اور چاند سورج کا جن کے پاس علم ہے، تو یہ تاریخ جس سے بناتے نا، سورج سے ایک تاریخ بنتی اور اسی طرح چاند کی ایک تاریخ ہے. تو چاند کی تاریخ، فلکیات، فلک یعنی جتنے بھی ستارے سیارے سارے کے سارے، اس کا علم جن کے پاس ہے انہوں نے تحقیق کی، باقاعدہ دیکھا، سرچ کیا. پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی پیر کے دن آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت ملی۔ دو باتیں اللہ کے نبی بتایا، یعنی پیدا بھی ہوئی اللہ کے نبی اور نبوت بھی ملی مجھے۔ دونوں باتوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس دن روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کی بات ہے یہ پیدا ہونے کے دن میں، ٹھیک ہے، غور کرنا یہ بات۔ تو تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پیر کا دن جو آتا ہے 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے، 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں۔ میلاد میں، میلاد بولے تو پیدا ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دن، اسے میلاد نبی بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کب مناتے ہیں لوگ؟ 1 جنوری، 25 دسمبر کو مناتے ہیں، مگر 1 جنوری کو وہ اپڈیٹ ہو گئی، نقل ہو گئی، ایک سال شروع ہو رہا ہے تو ہم یہاں یہ کریں گے، تو آگے آ رہی وہ بات بھی۔ تو پہلی بار میں یہ پوچھا گیا، شیخ پوچھتے ہیں محمد بن صالح العثیمین، بھائی تاریخی اعتبار سے کیا صحیح ہے؟ کیا یہ جو لوگ مناتے ہیں میلاد تو رام غلط ہے؟ تو 12 ربیع الاول کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اتفاق رائے ہے، سبھی علماء اس کے اوپر متفق تھی کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی وفات پائے۔ اب یہ خوشی مناتے نا میلاد کے نام پہ، خوشی جشن بولتے ہیں، جشن عید میلاد النبی بول کے بولا جا رہا ہے۔ جشن بولے تو عید ہو، مطلب خوشی، خوشی عید یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے جبکہ تاریخ، حقیقی تاریخ میں جو ہے 12 ربیع الاول ہے ہی، 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول ایک اور اختلاف جو ہے 11 ربیع الاول ہے۔ ایک اور اختلاف ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، لکھے وہ کتاب میں 10 محرم لکھے ہو، 10 محرم ہے، 11ویں شریف، پھر 12 محرم ہے، 10 محرم یا 12 محرم ہے۔ تو 11ویں شریف منانے کے آجو بازو میں انہوں نے عید میلاد النبی کا نام، مطلب میلاد کی جو تاریخ انہوں نے لکھی 12 محرم یا 10 محرم لکھ دیے۔ تو اس میں پہلی بات اختلاف ہے، اس میں یعنی گڑبڑ کئی کو 12 ربیع الاول کو عید منانا ہی کئی کو جس بات میں اختلاف ہو۔ دوسری بات، ہاں اختلاف ہٹا دیں دیر کے بعد، 12 ربیع الاول کو ہی ہمیں مان لیجیے، اس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، مان بھی لیے تو کیا اسلام کے اندر ایسا کوئی دن ہے جس دن مسجدوں کو لائٹنگ لگا ڈالو، جس دن پورا دن جلوس لگا ڈالو، جس دن صرف درود پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھو؟ ایسے باتیں کرنا یہ اسلام میں کہاں تک جائے؟ عید الفطر طے ہے شوال کی پہلی تاریخ، عید الاضحیٰ طے ہے 10 ذی الحجہ کو ہم مناتے عید الاضحیٰ۔ دونوں عید کے بارے میں سبحان اللہ پوری تاریخ اسلام کے اندر بڑے جوش اور بڑے خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے، یہ دونوں عید، اس کے علاوہ تیسری عید کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ تو تیسری بات اگر ہم بولے، شیخ بتاتے ہیں جب لوگوں سے پوچھا جاتا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تعظیم کرتے ہیں۔ ابھی میں صحیح مسلم کی حدیث پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدا ہوا اور اسی دن کو مجھے نبوت ملی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو تعظیم کا معنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تعظیم آپ کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج ملا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود یہ بسپر 3 سال آیا نہیں، پیر کا دن 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو، کتنے مرتبہ آیا؟ بسپر 3 سال۔ پھر اللہ کے نبی کے جانے کے فوراً بعد عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 5 سال خلیفہ رہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بعد بھی دیکھو کیسے کیسے دور گزرے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال خلافت تھے، ان کے زمانے میں تو ترقیاں ہی ترقیاں، ایسے پوسٹ مین کا جو یہ کرے، روڑا ڈالے، لوگوں کو پیغام پہنچانا آسان کرے، پوسٹ وغیرہ تو نہیں تھا اس سے، مگر پیغام پہنچانے کی آسانیاں اور روڈ ڈالنے، راستے معلوم کرنے، نشانیاں لگانے، گرتو یہ گاؤں وہ گاؤں بول کے بتانے، یہ سب اپڈیٹ ان کے زمانے میں ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی نہیں منایا۔
अच्छा भाई, उनके बाद देखेंगे अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा, यानी इनके जमाने में भी जैसे इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा की वफात हुई 249, कभी भी मनाया नहीं गया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की वफात हुई 250 कभी भी नहीं मनाया गया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह 230 इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह 303, यानी हिजरत करने के बाद उसे लेकर 300 साल गुजर गए भी एक मर्तबा भी इस दिन को ईद बोल के कोई भी नहीं, इस दिन का ईद का नाम कोई भी नहीं दिए। देखो ताजीम, क्या इनसे बड़े से ताजीम कोई कर सकता है? सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी कर्नी तुम्मल लदीना यलूनहुम तुम्मल लदीना यलूनहुम, यानी 3 दौर अल्लाह के नबी गिनाए, मेरे जमाने के सहाबा, उसके बाद का जमाना, उसके बाद का जमाना। बोले 300 सालों में, मतलब 3 सदियों में कभी भी ये दिन ताजीम वाला बोल के सुनने को भी नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। सुनना तो दूर की बात, देखने को भी नहीं मिला। भाई हमें कुरान और हदीस बोल रहे लोग बोलते ना ऐसा भी, भाई कब तक कुरान कुरान हदीस हदीस बोलते रहे। हम हमारी किताबों में भी देखो, हिदाया और एक किताब है उनकी, कई किताबें, 4-5 किताबें हैं। तो इन तमाम किताबों में भी उनकी ईद मिलाद नबी के बारे में कहीं भी तज़किरा नहीं। हुजूरी में ऐसे ऐसे मसाइल हैं, सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के 2 शागिर्द, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इन दोनों से छोटे छोटे मसाइल में बहस करें, छोटे छोटे बारीक बारीक मसाइल में। आप सुने बोलते बंदर, उतने बारीक मसाइल है। हम लोग पढ़े हो किताब, बहुत बारीक मसाइल, इतने बारीक बारीक मसाइल हैं, उसके बारे में इतना पूछताछ हो रही, मगर कभी भी ईद मिलाद यानी ताज़ीम करना, उसके बारे में कभी भी तज़किरा नहीं हुआ। दलील क्या बोलते? ताज़ीम बोले तो भाई दलील ये, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि रसूल को भेजा। तो रसूल को भेजा तो एहसान किया ना अल्लाह ताला, हमें भी एहसान को जतलाना, मतलब एहसान मंद बनना, एहसान का लाज हमें रखना। तो क्या करते? लाज रखना बोले तो जश्न मनाना। बहुत तो लाज रखने का माना ये ले सकते क्या? और एक बात ये भी बताए कि लोग ये कहते भी, इब्न उतैमीन अलैहि रहमा फरमाते हैं कि लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये हम दावत इल्लाह का काम करते हैं। अच्छा, दावत इल्लाह का काम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ही वो था पूरी जिंदगी। अब एक दिन ये करने के बाद उसके बाद कहां चले जाते हैं, कहां नजर आते हैं, और मस्जिदों के कदर सुन्नत बोल के जिंदा करने की बात बोलते हैं। असल जो सुन्नतें हैं वो छूट जाती। आज सुबह में हमें सुने ना कई बार, फजर की फर्ज याद नहीं रहती, फजर की जो 2 रकात सुन्नत याद नहीं रहती, ये सुन्नत जिंदा करने के लिए आ गए, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है मेरे भाइयों। तो ये जो 4 बातें, 4 बातों में भी अगर हम गौर करें तो इससे कहीं भी साबित नहीं होता। यानी दलील के तौर पर इमाम मोहम्मद बिन सालिह अल उतैमीन बताते हैं कि इससे हमारे लिए 4 बातों में हमें कहीं भी ढूंढे तो हमारे को ये नजर नहीं आता। अच्छा, हकीकी मोहब्बत है क्या? सच्ची मोहब्बत अगर हम देखना चाहते हैं तो सूरह आल इमरान की आयत में आपके सामने पढ़ा, इस पर एक आयत नंबर है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह फरमाते हैं ऐ नबी आप बोल दीजिए लोगों को, अल्लाह की मोहब्बत अगर चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। ठीक है, अल्लाह के नबी की पैरवी। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सलातु मन कुन्न फीहि वजदा हलावतुल ईमान, ईमान का मजा, ईमान की लज्जत और मिठास 3 चीजों में रखी गई। उसमें मन कान अल्लाह व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, यानी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, ये ईमान का मजा और नेकी की मिठास को चखने वाला अमल है। तो हकीकी मानों में ईमान वाला, हकीकी मानों में मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अल्लाह के नबी हाथ पकड़े हुए थे और कहने लगे कि उमर तुम मुझसे कितनी चाहत रखते हो, कितनी मोहब्बत रखते हो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं अपने नफ्स के अलावा आपसे
सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मतलब मेरा नफ्स मुझे सबसे ज्यादा प्यारा, बाद में आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, यानी कसम खाते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके हाथ में मेरी जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, ऐ उमर तुम मोमिन अभी नहीं हुए जब तक कि तुम अपने नफ्स से भी बढ़कर मुझे चाहने वाले बन जाओ। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला थोड़ी देर रुके और अपने नफ्स को पीछे किए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किए और कहा अल्लाह के नबी अब मैं आपसे मोहब्बत करता हूं अपने नफ्स से भी बढ़कर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-आन या उमर, अब तुम मोमिन हुए। तो अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करना, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला सुभान अल्लाह, उनकी मोहब्बत का हम मिसाल किसने भूल गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से जो मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की, उनसे बढ़कर मोहब्बत हम किस में ढूंढ लें। आज के लोग जो भी बोलते हैं, जो भी दावा करते हैं अल्लाह अकबर, ये तारीख के नाम पे यानी ईद मिलादुन नबी के नाम पे ये जश्न मनाना और ये बोलना कि ईद मिलादुन नबी मनाने वाले ही सबसे मोहब्बत के दावेदार हैं और जो नहीं मनाते वो लोग मोहब्बत नहीं करने वाले, इस तरह की बातें। सुभान अल्लाह, क्या अल्लामा इकबाल ने एक बेहतरीन शेर जो कही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे है। इसका माना ये कि अल्लाह के नबी की पैरवी करता है तो तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। पैरवी नहीं कर रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो झूठे दावे हैं वो मुसलमानी नहीं कहलवाती। तो हम लोगों के लिए जो आयतें जो मैं पढ़ा और हदीस आपके सामने मैंने पढ़ा, इसका माना और खुलासा यही, यानी जो दलीलें पेश करते हैं, जितने भी किताबें हैं, शरह विकाया हुई है, तंज़ुल दक़ाइक़ हुई है, इन तमाम किताबों में भी कहीं भी ईद मिलादुन नबी की दलील वो नहीं ला सकते। जबकि सच्ची मोहब्बत और हकीकी मानों में मुसलमानी, और हमें देखते हैं तमाम खुलफाए राशिदीन में, सहाबा से, सलफ़े सालिहीन में ये दूर दूर तक नजर नहीं आता। यानी मस्जिद को थोड़ी देर के लिए लाइटिंग लगा दी, जुलूस बोल लिए, और अल्लामा इकबाल को विषय की जबरदस्त जस्ता है यहाँ पे, मस्जिद तो बना दी सब घर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो बना दी है जबरदस्त शानदार मस्जिद, साला साला गुजर गए थे नमाजी नहीं। ऐसे मसाजिद हमें खुद देखे अपनी आंखों से, मस्जिद के बड़े बड़े जो सदर हैं, लीडर हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, माशाअल्लाह मस्जिद तो बड़े शानदार बनाए, मगर नमाजों की पाबंदी नहीं। कहाँ गए थे? तो बाहर चले गए, या कहीं काम पे चले गए, नहीं वहां चले गए, यहाँ चले गए। सही, नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए तो बनाए, मस्जिद तो बना दिए, मगर सारा साल गुजर गए मगर आबाद करने की फिक्र नहीं। वो नबी सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत के दावे आज कर रहे, आखिरी लम्हात में जो अल्फाज से अल्लाह के नबी के क्या थे, अस्सला अस्सला अस्सला, फिर ये बोलते अल्लाह के नबी कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अरे नमाज को तो लाइटिंग लगा लिए, एक दिन तो बड़े जुलूस कर दिए, ना जाने और क्या क्या काम होते होंगे, कैसे कैसे काम करते लोग। मिलाद के नाम पे, जुलूस निकालने के नाम पे लोगों के पास आके मांगा जाता, फंड जमा किया जाता। फंडिंग करना बिला इजाजत, यानी किसी को तकलीफ देते हुए मांगना, ये कितनी बुरी चीज है। भाई उनको इरादा ही नहीं जुलूस निकलने का या उनका निकलने का, तो जबरदस्ती मांगा जा रहा। तो हदीस में आता है बिला जरूरत मांगने वाला, बिला जरूरत यानी जरूरी काम नहीं है, फजूल कामों के लिए मांग रहा। तो फजूल कामों के लिए जब मांगा जाता है, क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसके चेहरे पर गोश्त का एक लोटा भी नहीं रहता, पूरा हड्डी, एक गोश्त का टुकड़ा भी नहीं रहेगा बदन में, बिला जरूरत मांगने वाले के बारे में। बिला जरूरत मांगना, एक और दूसरी हदीस में बताया गया कि वैसा आदमी अपने पेट में अंगार को भरता होता है। अब देखो, जुलूस निकालने का हो, 10वीं मुहर्रम को हो, क्या क्या करते लोग, बाकायदा गली गली फिरते, जैसा ये लोग गैर फिरते थे, नॉन मुस्लिम जो ये घरों के पास आ जाते हैं,
बिला इजाजत आ जाते, आके जोर से दरवाजा खटखटाना, ये करना है वो करना है, चंदा निकालो भाई, ये बिला इजाजत बिला जरूरत मांग, ये कितनी बड़ी गुमराही की बात है। और एक काम क्या करते, रोडों में निकल जाते, बाजारों में निकल जाते, शोर बर्द करते हुए, ट्रैफिक को जाम करते हुए। अरे ये कहां की मुसलमानी कि रास्ते में जाने वाले दूसरे लोगों को तकलीफ देना, दूसरे लोगों को तकलीफ देना। भाई रास्ते के जो आदाब हैं कितने प्यारे हैं, रास्ते में इसीलिए पेशाब और पाखाना करने से मना किया गया। ये चलने वाली राह है, लोगों का रास्ता है, उस रास्ते में आप तकलीफदार चीजों को बिठा दिए, डाल दिए, कचरा डाले, कूड़ा करकट डाले, तो ये जो दूसरों को तकलीफ देती है बात। हालांकि ईमान ये सिखाता है रास्ते में क्या कोई तकलीफदार चीज है उससे हटाओ, ये भी ईमान का आखिरी दर्जा है। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, अल्लाह के नबी ने फरमाया रास्ते से क्या कोई चीज हटाओ। जन्नत में जाने वालों के लोगों की जो फहरिस्त है उनमें से एक आदमी के बारे में ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रास्ते से एक तकलीफदार चीज को एक आदमी ने हटाया, वो एक नेकी थी उसके अंदर, उसको भी अल्लाह जन्नत में डाला। आज हमें मुसलमान के नाम पे रास्तों को जाम करते हैं, शोर करते हैं, और ये अब तो डीजे बाजे आ गए। अल्लाह के नबी की हदीस देखो, बड़ा सहाबुन फिल अस्वाक़, बाजारों में इस तरह शोर न करो। शोर करने में मुसलमान जो अपडेट हो के क्या कर रहा है, भाई डीजे भी करो। शोर में जब हम या सलाम या रसूल देख के नारा लगाते हैं, इसमें डीजे भी बजाओ, डीजे बजाते हैं अल्लाह अल्लाह। आज हमें सुने ना गाना बजाना, सॉन्ग करना, यानी ये इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, शैतान को खुश करती है। गाना और डीजे लगाना, लोगों को और ज्यादा तड़पाना। हार्ट पेशेंट है बोले तो ये जो ढोल है, ये बाजे है, ये सब भी उसको कितनी तकलीफ देती, कितना बदुआ देता है वो। छोटे छोटे जान, छोटे बच्चे बच्चियां घरों में रहती, उनको कितनी तकलीफ हुई। तो ये सब भी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इसको पसंद नहीं की। अब देखो जो बहुत ज्यादा आलीशान बना के रखना, खूबसूरत बहुत ज्यादा बनावट करके रखना, मस्जिदों को रंग करना और या लाइटिंग लगाना हो या कुछ भी, बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह ये जो करते हैं। एक वाकया देखो कितना प्यारा है, जिस नबी के नाम पर ये काम किया जा रहा है, नबी की मीलाद के ऊपर ये काम किया जा रहा है, उस नबी को कितनी नफरत है, दुनिया पसंद थी। वाकया ये है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाके, घर दरवाजे के पास जाके वापस चले जाते। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गौर करते, अब्बा आए और वापस चले गए। अली रज़ियल्लाहु अन्हा आने के बाद बताती है कि देखो ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हा जाके पूछते हैं, अबू दाऊद के हदीस है, जाके पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घर आए वापस चले गए, वजह क्या थी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे घर में रेशमी कपड़ा लटक रहा था दरवाजे के ऊपर, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। माली वही दुनिया, मेरे लिए दुनिया की चीज क्यों, यानी मेरे लिए जरूरत नहीं है दुनिया की चीज, दुनियादारी मुझे पसंद नहीं है, दुनियादारी में मैं रहना नहीं पसंद करता, मैं गवारा नहीं करता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी की हदीस में है ये बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आके पूछती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रेशमी कपड़े के बारे में मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलां घर को जाओ, वो गरीब लोग ही उनको दे दो, वो बेच देंगे और अपने जरूरियात को पूरी कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के घर में इस तरह के रेशमी कपड़े, इस तरह की खूबसूरत की चीजें, बनावट की चीजें हो, ये मुझे गवारा नहीं है। देखो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तरह की खूबसूरती और बनावटी को पसंद नहीं करते। आज मुसलमान उन्हीं के नाम पे इस तरह के जश्न मनाते हैं, इस तरह के काम करते हैं। अच्छा भाई, हमें अगर ये भी तस्लीम कर ले कि मीलाद एक तारीख के बारे में बताया ना, मीलाद के बारे में, मीलाद एक ही तारीख है, 9 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल को, जो भी हटा के ये मनाना भी अगर होता, मनाना भी अगर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से ज्यादा दुख देने वाला, ज्यादा नुकसानदा अगर कोई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को एक ही दिन
लोग करते ना आज एक ही दिन करते, तो लोग ये भी बोलते तुम्हें पैदाइश रख लो, हमें वफात रख लेती, नहीं नहीं तुम्हें वफात रख लो, तुम्हें रो गम मनाओ, हमें खुशी रख लेती, मतलब मिलाद रख लेती हमें, इस तरह का जुमला कहते हैं। यानी ये कितनी नादानी की बात है, कितनी बड़ी अजीब और बेवकूफी की बात है कि अगर दोनों को भी एक जमा करेंगे तो दोनों बातों को सामने रखने के बावजूद हमारे को यही नजर आता है कि सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात अल्लाह के नबी की वफात। अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि उस टाइम पे जब अल्लाह के नबी वफात पाए, हालत इस कदर बिगड़ गई, माहौल ऐसा रह गया कि सब सहाबा पर एक सख्ताकारी हो गया। उमर रज़ियल्लाहु तआला तो ऐसे बेकाबू हो गए, तलवार निकाल के बोलने लगे, कोई तो भी बोले अल्लाह के नबी वफात पाए तो मैं उसको गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए 40 दिन के लिए, फिर वापस आए, अल्लाह के नबी को वापस आती, यानी तैयार नहीं है कि अल्लाह के नबी वफात पाए, मानने को दिल नहीं कर रहा, जी नहीं चाह रहा कि अल्लाह के नबी हमें छोड़ के चले गए। होता ना ऐसा, मोहब्बत ज्यादा हो गई तो क्या बोलते, छोड़ के चले गया, हाँ कल तक था, ऐसी बात आ रही लोगों की। नबी ही वजू के खतरात को नीचे गिरने नहीं देते, नबी है, नबी के लुआब को खूब को अपने बदन पे बरकत के लिए मन लेते, नबी ही सुभान अल्लाह, नबी के नक्शे कदम पर चलने को गवारा करते, कभी भी पीछे हटना गवारा नहीं होता था। ऐसी मोहब्बत करने वाले वो सहाबा पर क्या तारीफ हो सकता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात बहुत ज्यादा दुख देने वाली थी, फिर भी अल्लाह के नबी के सहाबा सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला आए, सबको बिठाए, इत्मीनान दिलाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनाए। आयतों की रोशनी में कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफात के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी वफात पा गए तो क्या तुम पीठ फेर के भाग जाओगे? अल्लाह के नबी ने जो मिशन लेके आए उसके ऊपर चलोगे नहीं, काम करोगे नहीं? ये सवालात ऐसे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे मुझे आयतें ऐसी लग रही थी गोया अल्लाह अभी उतार रहा है, अभी मुझे समझ में अब आया ये मतलब। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी कहते हैं कि हमेशा अबू बकर मेरे आगे क्यों रहते थे, मैं अबू बकर को पार नहीं कर सकता था नेकियों में, इसी वजह से थी। हमेशा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने मरतबा ऐसा हुआ, क्या अबू बकर हक पे नहीं क्या, कहीं तो बदले अल्लाह के नबी, कितने बार ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए मैं इसे कत्ल कर देता हूं, ये गुस्ताख है, ये नारवा सलूक कर रहा है, ऐसे बातें कई मरतबा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, उनका रोब और दबदबा था। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चुप थे, खामोश थे, नबी के हां में हां मिलाते थे हमेशा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा आगे क्यों थे, इसीलिए थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें अगर देखें तो ये जश्न में जो भी होता है एक बहुत ज्यादा गुलू करते, गुलू बढ़ना, बढ़ चढ़ के बोलना, हाँ क्या बोलते, हमें बोलते नहीं कब तो बच्चों को मेरा बेटा शेर के जैसा तो नहीं, मगर उसकी ताकत और कुव्वत में बोलते। हाँ नबी के बारे में वो कैसे जुमले बोल रहे हैं, वही जो मुस्तवी अर्श पे था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, अल्लाह अकबर। समझे शेर, देखो दोबारा बोल रहा हूं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मतलब ये कि अल्लाह की जगह नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। कभी भी हमें ये तस्लीम नहीं करते कि अल्लाह, ये किसका तसव्वुर बोलो, मालूम आपको किसका तसव्वुर है? ईसाइयों का तसव्वुर ना, 3 खुदाओं में से एक ईसा अलैहिस्सलाम, या नहीं बोले तो खुदा खुद ईसा अलैहिस्सलाम ही जो दुनिया में आए आन लोगों के पाप को मिटाने के लिए। कैसी बात है, देखो लोगों के गुनाह इतने हैं कि वो अपने गुनाहों को नहीं बख्श पा सकते, नहीं मिटा सकते, तो खुदा खुद करे नौजुबिल्लाह। खुदाई इसमें है, 5 सिफतें, खुदाई आयतुल कुर्सी है, 10 ऐसे जबरदस्त मुस्तनद दलीलें, ये चैलेंज है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में। तो ये जो चीज है कि ईसाइयों का तस्वीर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब मीलाद बोलते पैदाइश बर्थडे मनाना, ये भी कहां से आया? ईसाइयों से आया, यहूद और नसारा की तरफ से भी आया।
यहूद और नसारा की बड़ी चाल है ये कि मुसलमानों को ये तौहीद से तो हमें हटा नहीं सकते, तौहीद के बजाय हम शिर्क दाखिल नहीं कर सकते, मगर उनके अंदर के ईमान को कमजोर करेंगे। कैसे कमजोर करना? उन्हीं के रास्ते पे हम चल के, कैसे शैतान ने कहा ना, लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, शैतान बोल रहा कि मैं आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से बाएं से बहकाऊंगा। कैसे बहका रहा शैतान? सीधे रास्ते पे आके बता रहा है ये भी सही रास्ता है। मोहब्बत हुई, अल्लाह के नबी की ताज़ीम हुई, क्या गुनाह है करना? गुनाह क्या है बोलो? जब सवाल कर रहे हैं आम मुसलमान बोलो हो तो सही ना बोल बता, यही हो रहा है। ज्यादा लोग जो मिलाद मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी में शरीक होते हैं, कसीर तादाद में जो जाने की वजह है यही, सही बात उनको मालूम नहीं है, तौहीद उनको मालूम नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा उनको सही मालूम नहीं है, इसीलिए वो चले जाते हैं और ये ईसाई के जो तौर तरीके हैं उनको अपना लेते हैं। बर्थडे उन्हीं की तरफ से आया तो हमारे भाई आगे चले गए, ये जो शोर शराबा करना, फंडिंग जमा करना, ये भी उन्हीं की तरफ से आया तो ये भी करने लगे, हमारे मुसलमान भाई करने लगे। और देखो दलीला क्या क्या बोल रहे, पहली दलील, दो दलीला बताओ। पहली दलील कुरान की सूरह यूनुस आयत नंबर 75-8 है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमा रहे ऐ नबी आप बोल दीजिए हमने फजल को उतारा है, रहमत को उतारा है, हिदायत को उतारा है हमने, इसके ऊपर आप खुश हो जाइए। क्या करना है मेरे भाई? खुश हो जाना। किसके नाजिल होने पर? हिदायत और अल्लाह की रहमत, हिदायत और अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत, ये चीजें अल्लाह ने नाजिल की तो खुशी मनाना। खुशी कैसे मनाना? किसके नाजिल होने पर? कुरान के नाजिल होने पर। कुरान के जरिए से हिदायत को अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान के जरिए से अल्लाह ने रहमत और बरकतों को नाजिल किया, ये अल्लाह फरमा रहे। मतलब ये भी नहीं कि कुरान जब नाजिल हुआ उनको भी हमें ईद मना ले, ऐसी भी बात नहीं। ईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाई वही है। ईद सहाबा का अमल जो किया गया, सहाबा अमल करे वही है, उसके अलावा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल रहे हैं पीर के दिन मैं पैदा हुआ और नबूवत मुझे मिली, मैं रोजा रखता हूं इसलिए। तो रोजा रख के अल्लाह के नबी ने फरमा दिया और बता दिया कि रोजा रखना अच्छी चीज है, रोजा रखो, पीर और जुमेरात सुन्नत है ना। उसके अलावा जो खुशी मनाना हो, ईद मनाना हो, ये आयत के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह के नबी आए बोल के खुशी मनाओ ये नहीं कहा गया आयत में। और दूसरी बात ये, लोग दलील देते हैं कि किसी ने ख्वाब में देखा अबू लहब जो है, जब अबू लहब की लोगी जो है आके खबर दी अल्लाह के नबी पैदा, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ, तुम्हारे छोटे भाई अब्दुल्ला को बेटा पैदा हुआ, तो वो खुशी सुन के ये क्या करा, चादर गिफ्ट में दिया और आजाद कर दिया लोगी। ठीक है, अबू लहब भी ईद मना रही है, मोहम्मदी ईद नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के ईद नहीं मना रहे। वे अबू लहब के काम पर ये अमल कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बोलते ही वो खुशी के तौर पर ये चादर दे दिया और उसको गिफ्ट करके उसको आजाद कर दिया, तो हमें भी ऐसी, उन्हें तो काफिर था, हमें तो मुसलमान है और ज्यादा करना। तो कहां से ले रहे ये दलील? अबू लहब से ले। अल्लाह ने कहा था बदुआ है इसमें, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। अबू लहब की मजम्मत की गई, उससे दलील ले। और अबू लहब अल्लाह के नबी का इतना कट्टर दुश्मन है, इतना कट्टर दुश्मन है, सीरत की किताबों में आप देखेंगे नबी के दुश्मन जो जानी दुश्मन थे, बड़े बड़े दुश्मन कौन थे, तो दो जने का नाम आता, अबू लहब है, अबू जहल है। ऐसे दुश्मन से दलील, और वो भी दलील कैसे बोल रहे हैं? देखो कोई ख्वाब में देखे अबू लहब को जहन्नम में जो है अंगार अजाब जो है हल्का देखे, ये ईद मनाए तो, ईद मिलाद नबी मनाए तो क्या बोलना चाह रहे? नबी को जो गाली देने वाला है, नबी को जो बुरा भला बोलने वाला है, नबी का बड़ा गुस्ताख है, नबी का बड़ा दुश्मन है, उस दुश्मन को सजा देने में तुम्हें तकलीफ के लिए उठ रहे हो। देखो दूसरी दलील देखो कितनी घटिया है, कितनी बड़ी अजीब है। छोटा सा छोटा बच्चा भी इसके बारे में ये करेगा। मुआज और मुआज भी रज़ियल्लाहु ताला क्या करे, अबू जहल को धूम धूम के मारे। अरे बच्चों के जैसी अकल भी नहीं है लोगों में आज। तो मेरे भाइयों
نہیں یہ دلیل اگر بولتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے، یعنی یہ دلیل چلتی نہیں بلکہ ایک گھٹیا دلیل ہے، یہ سوچ جو ہے بہت بری سوچ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں تمام باتیں جو آپ کے سامنے رکھا ہوں خلاصہ یہ بتاؤں گا کہ آج ہمارے لیے اسلام دیکھو پاکیزہ بہت صاف اور شفاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب الیوم اکملت لکم دینکم یعنی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے اتار دیا اور کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بولنے لگتے ہیں اور اپنے خواہشات کو دلیل بھی بنا کے کہتے ہیں کہ دلیلوں کی روشنی میں یا دیگر تعویلات بتا کر یہ یعنی انسان کو بہکانا چاہتے ہیں۔ کیا کیا بول رہے تھے؟ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بریانی نہیں تھی، سواریاں نہیں تھے، آج ان میں کھا رہے ہیں، سواری کو جا رہے ہیں۔ اس کو دین سے جوڑتے ہیں لوگ، اس کو دین میں لا کے فٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری تھی گھوڑا، خچر، گدھا اور اونٹ، اس کے اوپر اللہ کے نبی سواری کرتے تھے، اس میں آسانی پیدا کی گئی۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے تھے، گوشت فراہم کرتے تھے، اس میں آسانیاں آ گئی۔ آج نئی نئی چیزیں انسان پکا رہا ہے، تو یہ کیسے بدعت ہو گئی؟ یہاں تو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا نا، سال میں ایک مرتبہ اس طرح سے جمع ہونا، یا نہیں بولے تو 11ویں شریف منانا، یا نہیں بولے تو یہ جعفر صدیق کے نیاز جعفر منانا، رجب کے کنبے منانا، جو بھی لے لو آپ، اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے 100%۔ یہودی یہ ٹارگٹ بنا کے رکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں میں جو ایمان ہے اسے کیسے ختم کرنا۔ وہ یہ چال بازی کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد یہودی بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اب خوشی منانا کیسے منانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رجب کے مہینے میں پردے کے پیچھے ادنان کو جو ہے دعوت دینے لگے، آؤ جی مر گیا ہوں، خوش ہو جائیں گے، دعوت دیے، یہ مٹھائیاں کھلائے، کئی کو ہمارا دشمن مر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہودی خوشی منانے کے لیے پردے کے آڑ میں یہ مٹھائیاں کھلانے لگے۔ وہی بات آج جو ہے ٹائٹل ایک ہے، کام ایک ہے۔ ٹائٹل کیا؟ نیاز جعفر صدیق، اور وہ بھی جعفر صدیق حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بعد کے دوسرے، بعد کے 12 اماموں میں سے ایک امام یہ کچھ ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ لے لو، کوئی بھی بدعت آپ بولو، کوئی بھی نئی چیز اسلام کے اندر جو لوگ بتا رہے نا یہ بھی اسلام میں ہے، یہ چلا چٹی جو بھی دعوت ہے، وہ دعوت، یہ دعوت، اس سے پہلے ہمیں سنی دعوت کے کھانے کے پینے کے آداب میں۔ تو بہرحال اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش۔ یہودی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز تمہارے سے خوش نہیں جب تک تم لوٹ نہ جاؤ، جب تک تم کافری اختیار نہ کر لو۔ ہم کافر نہیں بنتے تھے، ہم مسلمان ہیں تو اس کو جلن بولی، ہم جب بھی آمین بولتے ہیں اس کو غصہ آ رہا، جب بھی ہم السلام علیکم بولتے ہیں اسے بہت بے چینی ہوتی ہے۔ وہ بے چینی کو کیسے وہ برداشت کرے گا؟ برداشت نہیں کر رہا۔ تو مسلمانوں کے بیچ میں گھس آیا اور محبت کے نام پہ، نیاز کے نام پہ، کنڈوں کے نام پہ بڑے بڑے ہڈیاں ہمارے ساتھ کھول رہی ہے۔ مسلمان خوشی سے چھڑوا لے رہے، اپنے سر کو ایمان کو دے جا رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس کے پیچھے جو تاریخ ہے اس کو پڑھ لینا بس۔ یہ عید میلاد النبی بھی جو ہے 350 پر ایک سال میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد 350 سال گزر جانے کے بعد، ایک اور روایت میں ہے 500 سال کے بعد یہ طریقہ رائج ہوا، یہ عید میلاد النبی جو ہے روایت میں آیا۔ بہرحال اس میں بھی بڑی سازش جو ہے یہودیوں کی ہی ہے۔ ہر بدعت اور خرافات کے پیچھے انہی کی چال بازی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی ہم سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور بدعات اور خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک ایمان کے اوپر جمے رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ بھی